ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति। Good morning, dear students. Hopefully all are good. Fine. Yes, sir. 4 students has joined this early morning class. Not early morning, maybe for you people, or maybe for other people, because you people have already joined. Devansh, Naman, Parth, and Yashika is there in the class. So, dear students, today, as per the schedule, we are going to discuss this accounting standard, a document I have shared with you people. That is nothing but what I have clicked. Yashi Patel is there in your class. Yashi Patel. Good morning, Yashi Patel. Yashi Patel, can you hear me? Sir, it's Bhavya Patel. Acha, Bhavya. Okay. Better join with your name only so that what I can recognize. Otherwise, what happened? Uh, हाँ अपन नाम कर सकते हैं ना, रीनेम कर सकते हैं उसको, तो उससे क्या होता है कि कोई कंफ्यूजन नहीं रहता है कि whether the same students or other are joining, because they some of them join unnecessarily and they create nuisance unnecessary. Okay, so let's start with this accounting standard, students. आप लोगों को लग रहा होगा कि the chapter is going to be a very intensive, बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोग theory discuss कर रहे हैं, and so many things are there, but actually you can understand this is the soul of chapter, not soul of chapter, actually soul of subject, sorry. मतलब अगर हमें ये समझ में नहीं आ रहा है, मतलब if we are not aware about this standards and all the things, then it is going to be very difficult to understand that what is the subject actually. Okay, so have you gone through this document, students, what I have shared, or what is given on your book on page number 3.8, this accounting standards, meaning of accounting standards, and what is there? Have you studied this content? Sir, due to some family issues, due to some personal issues, I could not go through it. Mm-hmm. So I'll go through it today only, today itself. Mm-hmm. Okay. Never mind. We'll discuss in the class. Especially as far as the commerce students are concerned. As far as this commerce students are concerned, I always found that these students are not very. This Vedant Patel is there in your class. Vedant Yes, Patel. sir. Yes, sir. Okay. As far as the commerce student is concerned, they less like to read theory. They like to solve the practicals, numericals. जो क्वेश्चंस होते हैं वो उनको सॉल्व करना अच्छा लगता है, लेकिन जनरली थ्योरी पढ़ना प्रेफर नहीं करते हैं. So never mind, it is quite expected, and I used to explain the theory to them. Just a minute.
Is it audible, visible properly? Would you please confirm it? Yes, sir. It's visible clearly. Oh, thank you, Yashika. Please open your reference book also. अपनी book open करें. Maybe you are sitting in your bed only. You are just lying in your bed and attending the classes. But make sure कि आपकी book at least open हो. और जो चीजें हम लोग बता रहे हैं वो आपको सुने. आप उसको सुने properly. ठीक है? So it will help you to understand. Rarely we people got the first period. I think शायद Thursday को ऐसा होता है कि जब हमारे पास में पहला period होता है. Otherwise last period is there. जब तक लगभग एनर्जी जो है वो खत्म हो चुकी होती है. चलिए, तो that is very good कि हम एक बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ रहे हैं और पहले पीरियड में पढ़ रहे हैं. Then it will definitely help you to understand it better. So dear students, accounting standards के बारे में हम लोगों ने बात की. ये जो टॉपिक था मैंने कुछ क्लिक करके आपको सेंड किया था. And we are not going in very details. I'm not going in very details, but I'm just telling you one brief things. What is the what to say? The gist of this topic, accounting standard, the purpose or the objectives or overall theme of this topic is what? Overall theme of this topic is what? That there should be some common rules worldwide for all the business organizations. कुछ कॉमन रूल्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है. कॉमन रूल्स जो सभी फॉलो करें, क्योंकि अगर कॉमन रूल्स सभी लोग फॉलो करेंगे then there would be what? The four qualitative characteristics what we have discussed about. That is comparability, understandability, relevant and the reliability. हम मीन्स जब सारे लोग कॉमन रूल्स फॉलो कर रहे हैं, कॉमन अकाउंटिंग रूल्स फॉलो कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा? मुझे आपके अकाउंट समझ में आएंगे, आपको मुझे मेरे अकाउंट समझ में आएंगे. प्लीज डू अंडरस्टैंड. ठीक है? हम दोनों के अकाउंट्स को या फिर हम आपस में हमारे अकाउंट्स को कंपेयर कर पाएंगे. When it is possible, when there would be the common rules. ठीक है? We would be having the faith on your accounts. हमें आपके अकाउंट्स के ऊपर रिलायबिलिटी होगी, है ना? फेथ होगा, विश्वास होगा कि इसमें जो इंफॉर्मेशन दे रखी है वो सही है, गलत नहीं. अभी आप सोचो थोड़ी देर के लिए, समझिए इस बात को, है ना? सीबीएसई ने अपनी एक पॉलिसी बना करके सारे सीबीएसई स्कूल को दे दी कि इस बार रिजल्ट ऐसे बनेगा. क्या किया उन्होंने? कॉमन रूल्स दिए. आप सोचिए अगर कॉमन रूल्स नहीं होते, राइट टू अंडरस्टैंड, कि अगर कॉमन मेथड या कॉमन मेथड या प्रोसीजर या थ्योरी फॉलो नहीं की गई होती रिजल्ट प्रिपरेशन में, तो सारे स्कूलों को बोल देते हैं कि भाई आप बीपीएस अपने हिसाब से बना लो, एपीएस अपने हिसाब से बना लो, वनस्थली अपने हिसाब से बना लो, गुरुकुल अपने हिसाब से बना लो. तो सभी अगर अपने अपने हिसाब से अपने रिजल्ट बनाते तो क्या वो रिजल्ट रिलायबल होते हैं? टेल मी वन थिंग, जल्दी से बोलो. नहीं होते सर, है ना? इसलिए सीबीएसई वहां पर वो बहुत स्मार्ट लोग बैठे हुए, है ना? तो उन लोगों ने क्या किया? अपने रूल्स बना करके स्कूल्स को दिए कि आपको इस रूल में फ्रेम करना है, और उसमें इतने सारे उन्होंने check point डालें. Dear students, try to understand. You are the students of 11th and you are waiting for the result. It was about to declare on the 20th, but not yet. Maybe within day or two, शायद result out हो जाए, है ना? तो उन्होंने उसमें भी इतने सारे चेक पॉइंट्स और ऑडिट डाले कि स्कूलों के हाथ में ज्यादा कुछ है नहीं बेटा. सीबीएसई ने चाबी अपने हाथ में ही रखी, क्योंकि उनको पता है कि स्कूल फ्रॉड कर सकता है. सो कहने का मतलब क्या, हम उस विषय पे नहीं जा रहे. हम लोग ये जा रहे हैं कि कॉमन रूल इसलिए जरूरी है ताकि लोगों का विश्वास उस पर बना रहे. नहीं तो आपके रूल्स पर, आपके अकाउंट्स पर मुझे विश्वास नहीं होगा, मेरे अकाउंट्स पर आपको विश्वास नहीं होगा. ठीक है? सो देयरफॉर दिस कॉमन रूल्स आर नेसेसरी. अब ये कॉमन रूल्स कौन बनाएगा? कौन इनको कंपल्सरी करेगा कि यस यू हैव टू फॉलो दिस रूल्स? सो देयरफॉर दिस अकाउंटिंग बॉडीज, स्टैट्यूटरी बॉडीज आर देयर. Okay, so accounting standard is all about making an answer.
unifications of accounting principle for all the business organizations worldwide. It doesn't matter whether it is India, China, Pakistan, Japan, Britain, or XYZ country. It doesn't matter that what type of the business organization is there. Just like we people are having the 5 form of business organization, sole proprietorship, partners, they join into family business, cooperative societies, and joint stock companies. Or as far as the government is concerned, so statutory corporations are there, statutory corporation, departmental undertaking, and government companies are there. Okay, so हमारे यहाँ पर इस पैटर्न में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं. तो अलग कंट्रीज में अगर और भी किसी फॉर्म के ऑर्गेनाइजेशन हो, दैट डजंट मैटर, बट ये रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे, तभी जाकर के आपके अकाउंट्स वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट हो पाएंगे. सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जो कुछ भी दे रखा है, देखो काफी सारी चीजें दे रखी है. इट्स अबाउट योर इंटरेस्ट एंड द प्रेफरेंस कि आप इसको कितने अच्छे से समझना और सीखना चाहते हैं. अगर आप इसको समझना सीखना चाहते हो तो आप इसको पढ़ोगे, कुछ वीडियोस देखोगे और ट्राई करोगे कि इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन निकले. नहीं तो फिर आप ये सोचोगे कि अरे क्यों इतनी थ्योरी पढ़ेगा, चलो ठीक है समझ में आ गया. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दैट मींस इट इज फॉर द कॉमन. सो इट्स अबाउट द प्रेफरेंसेस, बट ओवरऑल द थिंग्स आर व्हाट देयरफॉर. तो इसलिए एक इंटरनेशनल लेवल पर एक अकाउंटिंग बॉडी बनाई गई जिसका नाम था इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी, दैट इज फ्रेम्ड इन 1973. फिर उसके बाद में 1977 में उसको रिप्लेस किया गया, रिफॉर्म किया गया एंड नेम्ड इट एज इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड. ठीक है, और फिर उन्होंने जो रूल्स बनाए, अकाउंटिंग के रूल्स बनाए, है ना, उन रूल्स को क्या कहा गया, उन रूल्स को कहा गया IFRS, IFRS, है ना, इंटरनेशनल फाइनेंशियल reporting standards, international financial reporting standard. IFRS is what? It is rules to make accounts. Who made this IFRS? IASB, International Accounting Standard Board, what is also called IFRSB, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड बोर्ड. इसको इस नाम से भी जाना जाता है. ओरिजिनली इट इज इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, जो कि 1973 में सेटअप हुआ, बाद में 1977 में रिफॉर्म हुआ, है ना, जो कि 1973 में फॉर्म हुआ था, 1977 में रिफॉर्म हुआ, और उन्होंने मींस दिस रूल और दिस स्टैंडर्ड्स दे हैव गिवन टू द वर्ल्ड to maintain the financial standard properly. अब बहुत सारी कंट्री ने ये IFRS कितने हैं, around 42 it is. ठीक है, अब बहुत सारी कंट्री ने उनको एक्सेप्ट कर लिए. बहुत सारी कंट्रीज अपनी प्रॉब्लम बता रही कि हम इनको एक्सेप्ट नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे यहाँ का जो सोशल स्टैंडर्ड है वो इस तरह के है, इस तरीके से है ना. Are you able to see this properly? ये बार-बार blur हो रहा है. Would confirm anyone? Is it fine? Sir, clear है sir. Okay, thank you. Yes. हमारे इंडिया में है ना बेटा, हमारे इंडिया में है ICAI, Institute of Chartered Accountancy of India, and Institute of Cost and Work Accountant of India. ठीक है ना. तो ये जो हमारी नेशनल लेवल पर जो अकाउंटिंग बॉडी, जो नेशनल लेवल पर जो अकाउंटिंग बॉडी है, दिस अकाउंटिंग बॉडीज आर मेंबर ऑफ दिस, है ना. मींस इट प्रेजेंट अराउंड 196, मतलब 196 कंट्री की जो अकाउंटिंग बॉडीज है, दे आर द मेंबर ऑफ IASB एट इंटरनेशनल लेवल. ठीक है, तो उसमें इस 196 में हमारे इंडिया का ICAI, मतलब इंडिया को जो रिप्रेजेंट करता है, या फिर इंडिया मींस विद द टाइटल ऑफ इंडिया जो पार्टिसिपेट करता है, वो है ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया. ठीक है, और ICAI इज फुल्ली रिस्पांसिबल, ICAI इज फुल्ली रिस्पांसिबल कि इन्होंने जो रूल्स बनाए हैं, जो IFRS बनाए हैं, वो पूरे इंडिया में प्रॉपर तरीके से एप्लीकेबल है ना. और ICAI ही इंडिया में CA को लाइसेंस देता है, रजिस्टर्ड करता है, या फिर CA की एग्जामिनेशंस कंडक्ट करवाता है, इंडिया में CA बनाता है.
सरल शब्दों में, ठीक है। तो आईसीआई इस बात को चेक करता है कि वो सारे जो रूल्स हैं वो इंडिया में प्रॉपर तरीके से एप्लीकेबल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, और जो सीए हैं ये सारे सीए आईसीआई को रिपोर्ट करते हैं। मतलब आईसीआई चाहे तो किसी सीए का लाइसेंस, किसी सीए का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है अगर उन्होंने किसी अकाउंट को फ्रॉड या किसी के अकाउंट गलत चेक कर दिए। अपनी वेबसाइट पर टाइम टू टाइम यू शुड गो टू द वेबसाइट ऑफ द आईसीआई एंड चेक इट। टाइम टू टाइम दे यूज्ड टू लिस्ट आउट ऑल दोस सीएस हु फाउंड गिल्टी, है ना। सीए भी तो ह्यूमन बीइंग्स है ना हमारी तरह, वो भी अकाउंट्स ऑडिट करने में गलतियां कर सकते हैं। तो आईसीआई जस्ट टू इनिशियली टू मेक देम एम्बैरेस कि आपने गलत किया, वो अपनी वेबसाइट के ऊपर उनके नाम डालता है ताकि सभी कॉमन लोग अवेयर हो जाएं कि भाई ये फलाने सिंह हैं, मिस्टर राहुल सोनी, इन्होंने ये सीए हैं और इन्होंने किसी कंपनी के अकाउंट गलत चेक कर दिए थे, तो इन्होंने इनका नाम हमने द सीए हु फाउंड गिल्टी में टाइटल किया है, ताकि आगे से मैं अपना काम ज्यादा ध्यान से और ज्यादा अच्छे से करूं, ठीक है। तो ये बॉडी होती है बेटा नेशनल लेवल पर। होपफुली इट इज क्लियर। है ना, ये देखिए, हाँ पेज नंबर 3.9 के ऊपर की तरफ ही दे रखा है आपकी बुक में, है ना, ये इसके बारे में ये ब्रीफ बता रहा हूं मैं। ASB Accounting Standard Board submit the draft accounting standard to the Council, the Institute of Chartered Accountancy of India, will issue it for the comment of the government, industrial and professional, etc. The Council of ICI give due consideration to the comment received by amendment and draft accounting standard if necessary. Before notifying it, in case of companies, accounting standard are recommended to the National Financial Reporting Authority. है ना, हमारे यहाँ पर NFRA होती है, नेशनल फाइनेंशियल दिस रिपोर्टिंग अथॉरिटी, उसके पास भी ये सारे डॉक्यूमेंट जो भी स्टैंडर्ड्स होते हैं वो जाते हैं अंडर द कंपनी एक्ट 2013। देखिए अभी आप बिजनेस स्टडीज में भी इस टॉपिक को स्टडी कर रहे हैं कि सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को गवर्न करने का राइट अलग अलग स्टेचुटरी बॉडीज के पास में होता है ना। जैसे पार्टनरशिप एक्ट 1932, उसका काम है पार्टनरशिप बिजनेस को मैनेज करना, पार्टनरशिप बिजनेस को रेगुलेट करना इंडिया में। If one want to make the partnership form, they need to get it registered under the Partnership Act 1932. The rules and regulations are there under the Partnership Act 1932, and that those rules is to be followed strictly. ठीक है। Then after joint into family business, then cooperative society, then joint stock companies, इन सभी की एक स्टैट्यूटरी बॉडी होती है जो इन बिजनेस को इंडिया में रेगुलेट करती है, ठीक है। तो जो स्टैंडर्ड्स हैं जैसे IFRS, this is only compulsory फॉर कंपनीज, ये केवल किसके लिए कंपलसरी है? जॉइंट स्टॉक कंपनीज के लिए। बिजनेस स्टडीज में जॉइंट स्टॉक कंपनी पढ़ लिया आपने, अब पढ़ेंगे जॉइंट स्टॉक कंपनी, जॉइंट स्टॉक। ओके, जॉइंट स्टॉक कंपनी या जॉइंट स्टॉक कंपनी से एक्चुअल नेम, बट जनरली हम लोग उसको कंपनीज बोलते हैं, कंपनी बोलते हैं ना। प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, वन पर्सन कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी और ग्लोबल कंपनी, मल्टीनेशनल और ग्लोबल कंपनीज, ठीक है। So this standard is to be followed by companies only. Okay, for sole proprietorship, for the partnership, for joint into family business, for cooperative, there are the different standard. कुछ स्टैंडर्ड्स में रिलैक्सेशन होता है ना, जैसे ऑडिट करवाना केवल जो कंपनीज होती है उनके लिए मैंडेटरी होता है, और उसमें भी किनके लिए? जिनका एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ के ऊपर होता है। लेकिन एक सोल प्रोप्राइटर भी अपने अकाउंट्स को ऑडिट करवा सकता है, पर कंपलसरी किसके लिए है? Only for the joint stock company, and if the company is having the annual turnover more than 2 crore, ठीक है ना। So many rules are there based on this body, whatever bodies are there in India, they regulate it. Yes please sir, monthly turnover 2 crore or yearly annual turnover, okay sir, annual turnover 2 करोड़ के ऊपर जिनको होता है ना, उनको ऑडिट करवाना कंपलसरी होता है। ये जो लिमिट है ना बेटा, ये चेंज भी होती है, हर साल होती रहती है चेंजेस, बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट, बेस्ड ऑन द मार्केट कंडीशन, बेस्ड ऑन द सर्टेन डायनामिक एनवायरनमेंट्स, दे यूज्ड टू मेक इट चेंजेस, है ना। जैसे जीएसटीआर जो जीएसटी का रिटर्न फाइल करने की कंडीशन को टाइम टू टाइम जो काउंसिल ऑफ जीएसटी है वो रिलैक्स करती रहती है कि ठीक है आप 3 मंथ में फाइल कर सकते हो, 6 मंथ में कर सकते हो, 1 ईयर में कर सकते हो अगर आपका टर्नओवर इतना है।
So these all limits are used to be changed based on the needs and the requirements of market or the stakeholders. Hopefully you are able to understand this. Yes, Okay. sir. Thank you. So students, now let's talk about this topic. This is what the meaning of accounting standards we have already discussed. What is meaning? So these are the common rules. I'm just reading for this for you people. Please listen it very carefully. This is given on the page number 3.9. इसको ध्यान से सुन लें. Dear students, मैं जितना इसमें बता रहा हूँ, इसके अलावा इसमें बहुत सारी चीजें. और after 12th standard, suppose you are going to be means you are going to plan for the CA or the CS or CW, तो ये सारी details आपको बहुत detail में पढ़नी है ना. अगर आप बीकॉम बीबीए या फिर और कोई सा ट्रेडिशनल कोर्स करने जा रहे हैं तब शायद आपको इतनी डिटेल में नहीं पढ़ना पड़े. बट इफ यू आर गोइंग टू बी द प्रोफेशनल, then you will have to study this all the things in detail. 11th में are also used by many CA students also. जो CS के स्टूडेंट्स हैं वो भी इन कंटेंट को यूज करते हैं, इसलिए इसने इतनी डिटेल में दे रखी है. लेट मी मेक इट आल्सो क्लियर दिस, है ना. अदरवाइज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एनसीईआरटी में देखोगे तो 1 से 1.5 पेज में दे रखा है. 1 से 1.5 पेज में उन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को खत्म कर दिया, क्योंकि 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं. आई एम रीडिंग फॉर यू. थोड़ा सा इसको अपन तेजी से आगे बढ़ाते हैं. आई एम रीडिंग दिस फॉर यू. यू कैन आल्सो कंसंट्रेट इन योर बुक. Accounting standards are a set of guidelines, generally accepted accounting principles that are followed for preparation and the presentation of financial statement. They are accounting rules and procedures relating to the measurement, recognition, treatment, presentation, and disclosure of accounting transactions in the financial statement issued by Council of Institute of Chartered Accountant of India. So, accounting standard is nothing but the rules to prepare and present. कैसे बनाना है, कैसे दिखाना है, कैसे बनाना है, कैसे दिखाना है. ठीक है, क्योंकि अकाउंट्स हम बनाते ही दिखाने के लिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड. दिखाने के लिए मतलब जस्ट टू शो, जस्ट टू प्रेजेंट टू वेरियस स्टेकहोल्डर्स हु आर द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. हु आर द यूजर? इंटरनल यूजर, एक्सटर्नल यूजर. वो सारे जो यूजर्स हैं उनको दिखाने के लिए, सो दैट व्हाट दे कैन टेक द इंपॉर्टेंट डिसीजन. इस कंपनी में पैसा लगाना है कि नहीं लगाना है, इस कंपनी में जॉब करना है कि नहीं करना है, इस कंपनी को लोन देना है कि नहीं देना है, इस कंपनी को उधारी में गुड सप्लाई करना है कि नहीं करना है. ठीक है, इस कंपनी के साथ में पार्टनरशिप बनाना है कि नहीं बनाना है. सो मेनी थिंग्स आर देयर. ठीक है. नाउ दिस नेचर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स वी हैव डिस्कस्ड इनिशियली, है ना. So we are just going to recap. Accounting standard are guidelines providing the framework so that the credibility of the financial statement are prepared. These are only the guidelines. The objective of setting accounting standard to bring the uniformity in accounting practices and to ensure the transparency, consistency, and comparability. That is reliability, relevance, comparability, and understandability. Okay. Accounting standard are prepared keeping in the view of the business environment and the law of the country. Please note this. ठीक है. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंटरनेशनल हो सकता है कि कुछ, जैसे बहुत सारे बिजनेस हमारे यहाँ पर अलाउड है लेकिन अदर कंट्रीज में अलाउड नहीं, या फिर वहां पर अलाउड है लेकिन हमारे यहाँ पर अलाउड नहीं. So accounting standards are acceptable but with considerations of law and orders of that country. ठीक है. Accounting standards are mandatory in the nature, that is mandatory in the nature, and accounting standards have also made them flexible in the sense that where alternative accounting practices are acceptable. मतलब बहुत सारे accounting standard ऐसे भी हैं. IFRS की बात करें, है ना, टोटल अराउंड 42 है. इसमें से अभी तक हम लोगों ने 36 accounting standard accept किए, है ना. और इसमें भी changes, modifications, alternates के साथ हैं, क्योंकि पहले हमारे भी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते थे. के बाद में in the global sense we have start accepting the IFRS. बहुत सारे इंडस्ट्रीज में हमने सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को अडॉप्ट कर लिया as it is, बट कुछ एक हम अल्टरनेटिव प्रैक्टिसेस भी फॉलो कर रहे हैं, है ना. जैसे हमारे यहाँ पर जो हिस्टोरिकल कॉस्ट कांसेप्ट फॉलो होता है ना, हम लोगों ने अभी पढ़ा था हिस्टोरिकल कॉस्ट कांसेप्ट.
लेकिन बहुत सारी कंट्री में हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं होता है, वहां पर रिलायबल कॉस्ट कॉन्सेप्ट फॉलो होता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली, जस्ट टेक अ ब्रेक एंड लिसन इट वेरी केयरफुली। जैसे हमारे यहाँ पर इससे कोई मतलब नहीं है कि आपने 10 लाख की कार खरीदी है और उसकी मार्केट वैल्यू 4 लाख रुपए है, लेकिन आपकी बुक वैल्यू 8 लाख है, देन वी विल राइट इट ऑन द 8 लाख रुपीस बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। लेकिन बहुत सारी कंट्रीज में क्या पैटर्न फॉलो होता है, इट डजंट मैटर कि उसकी बुक वैल्यू कितनी है, इट डजंट मैटर कि वो असेट्स आपने कितने में परचेज किए, इट्स मैटर कि उसका मार्केट वैल्यू कितना है। उसका जो मार्केट वैल्यू है वही लिखा जाएगा। हमारे यहाँ पर ये पैटर्न फॉलो नहीं होता है। हमारे यहाँ पर इससे कोई मतलब नहीं कि उसका मार्केट वैल्यू कितना है। हमारे यहाँ पर ये पैटर्न है कि उसका जो कॉस्ट है, बुक वैल्यू है, दैट वुड बी रिकॉर्ड, दैट वुड बी रिकॉर्ड। सर यस प्लीज। सर अगर मार्केट वैल्यू देखेंगे तो फिर अकाउंट्स प्रॉपर कैसे बनेंगे? रिलायबल थोड़ी होंगे फिर वो हमारी कंपनी के हिसाब से या हमारे कॉर्पोरेट के हिसाब से जो भी। हाँ बट बेटा मार्केट वैल्यू तो चेंज होती रहती है ना, फ्लक्चुएट होती रहती है। उसके हाँ पीछे सर, हमारे जो सर वो हाँ कांस्टेंट नहीं रहती है तो अकाउंट्स रिलायबल कैसे रहेंगे? हम लोग रिलाय नहीं कर सकते ना उन पे। हाँ मार्केट सिचुएशन, इसीलिए तो हम लोग, इसीलिए तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हम लोग मार्केट वैल्यू को प्रीफर नहीं करते हैं। हम लोग किसको प्रीफर करते हैं? कॉस्ट को और बुक वैल्यू को, कॉस्ट को और बुक वैल्यू को। मतलब कॉस्ट कितनी है? 10 लाख, डेप्रिसिएशन कितना लगाया? 10%। डेप्रिसिएशन लगाने के बाद में कितना वैल्यू हुआ? 1 लाख। 10 लाख माइनस 1 लाख, 10 lakh is the original cost. What is cost? 10 lakh less depreciation at the rate of 10%. 1 lakh rupees depreciation लगाया. Now what is the book value? 9 lakh. देखो ये बुक कॉस्ट है, ये बुक वैल्यू है, और मे बी द मार्केट प्राइस इज ओनली 7 lakh. ठीक है? So we prefer only, मतलब in Indian accounting standard we work with the cost and the book value, cost and the book value. But many countries, बहुत सारी कंट्रीज में कॉस्ट के बाद में डायरेक्ट मार्केट वैल्यू कंसीडर की जाती है, बुक वैल्यू कंसीडर नहीं की जाती। कि अगर 10 लाख रुपीस की आपकी कार है और उसकी मार्केट वैल्यू 7 लाख रुपीस है तो 3 लाख रुपीस इज अ डेप्रिसिएशन। अब उसके पीछे उनकी क्या थ्योरी है? उसके पीछे उनकी ये थ्योरी है कि जो रिलायबल वैल्यू होगी, रिलायबल वैल्यू होगी, उसी को लिखा जाना चाहिए, तभी तो आपके अकाउंट्स रिलायबल होंगे। कि भाई आपकी असेट्स की कीमत 7 लाख है तो आप उसको 7 लाख पे लिखो। आप अपनी असेट्स की कीमत 9 लाख पर लिख रहे हो जबकि उसकी एक्चुअल वैल्यू तो 7 लाख है, तो ज्यादा सही क्या है? जल्दी से बोलो, व्हाट इज बेटर, वेदर 9 लाख और 7 लाख? सर 9 लाख। व्हाई 9 लाख? नहीं बेटर मतलब not in terms of money, which is more appropriate to write in the book of account when 7 lakh. book value of the asset is 9 lakh and the market value is 7 lakh. So to make the accounts more reliable, which amount we should write? सर बुक वैल्यू। क्यों? Why? सर बिकॉज मार्केट वैल्यू तो फ्लक्चुएट होता रहता है, कभी घट सकता है कभी बढ़ सकता है, तो उस पर हम रिलाय नहीं कर सकते हैं। बट बुक वैल्यू कांस्टेंट रहता है। वेरी करेक्ट, वेल डन। बेटा यही अप्रोच फॉलो होता है हमारे यहाँ पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, और इसलिए ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अभी भी फॉलो हो रहा है, अभी भी हम लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। हालांकि आईएफआरएस इसको सपोर्ट नहीं करता है। आईएफआरएस का कहना है कि आप मार्केट वैल्यू को प्रीफर करिए, क्योंकि अगर आप मार्केट वैल्यू को प्रीफर नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हो रहा है कि आप कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल को अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, है ना? ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये आपने एक अच्छा मतलब आप लोग डिस्कस कर रहे हैं, सो इवन आई एम इंटरेस्टेड ऑलवेज टू मेक यू पीपल लर्न दिस। जब हमें मालूम है कि उसकी बुक वैल्यू 9 लाख रुपीस है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। हमें पता है कि उसकी बुक वैल्यू 9 लाख रुपीस है जबकि उसकी मार्केट वैल्यू 7 लाख रुपीस है। हमें मालूम है कि बिजनेस को 2 लाख रुपए का लॉस होने वाला है। हमें पता है कि बिजनेस को 2 लाख रुपीस का नुकसान है। तो कंजर्वेटिव्स ने प्रूडेंस प्रिंसिपल में क्या सिखाता है? That all the anticipated losses and the liabilities should be treated as the actual liabilities or actual losses, and we need to make provision for all the anticipated losses but not for the anticipated gain. तो एक तरफ तो हम कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं, प्रूडेंस प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं,
और दूसरी तरफ हम बुक वैल्यू लिख रहे हैं, तो डोंट यू थिंक दिस इज द कॉन्ट्राडिक्शंस बिटवीन दिस टू डिफरेंट थ्योरी? दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ IFRS. I mean, this is the explanations of the IFRS. बट यहाँ पर जो पॉइंट आपने बताया वो भी सही है कि मार्केट वैल्यू तो चेंज होती रहती है. मार्केट वैल्यू तो मार्केट इज अ डायनामिक, मार्केट इज अ डायनामिक सिनेरियो. उसकी रिक्वायरमेंट है, उसकी डिमांड ज्यादा है तो प्राइस बढ़ जाएगी, डिमांड कम है तो प्राइस कम हो जाएगी. वो स्टेबल तो है नहीं. पर अगर वो स्टेबल नहीं है और फिर भी आप अगर उसको प्रीफर करते हैं, मतलब कि आप प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल को अवॉइड कर रहे हैं. तो ऐसे बहुत सारे प्रिंसिपल है. कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स, है ना, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल आई हैव गिवन कि देयर आर means there are around means 6 principles or more than 6 principles IFRS standards are there, जो कि बहुत सारी कंट्रीज में, जैसे हमारे यहाँ पर करीब 36 प्रिंसिपल को एज इट इज अडॉप्ट किया गया है ना. कुछ प्रिंसिपल में मॉडिफिकेशंस के साथ में अडॉप्ट किया गया है, कुछ स्टैंडर्ड्स को मॉडिफिकेशन के साथ में अडॉप्ट किया गया है. बहुत सारी कंट्रीज में और भी कम स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट किया गया है ना. तो so many things are there. It's not very easy to bring all the people on the same platform. Do you understand this? ये एक बहुत बड़ा टास्क है कि सारी कंट्रीज में वर्ल्ड वाइड एक जैसे रूल्स फॉलो. इट्स वेरी टफ, वेरी डिफिकल्ट, है ना. एक घर में भी 4 लोगों के थॉट्स एक जैसे नहीं हो सकते, है ना. जब पूछा जाता है कि शाम को डिनर में क्या बनाना है, तो कोई कहेगा कि आज पनीर बना दो, कोई बोलेगा कि नहीं आज ये बना दो, कोई कहेगा कि नहीं आज तो बाहर चलते हैं, और फिर हम आप जैसे बोल देंगे नहीं नहीं एक काम करते पिज्जा ऑर्डर कर देते हैं. Then you can understand how it is possible to bring whole world on the same standard, same financial standards to be followed in all the business organizations. So it's a tough task. Still, organization is working. Still, national bodies are working. It will take time, but it will happen. चलिए, समझ में आया बेटा? आपको ओवरऑल हमें समझ में आने चाहिए कि ये सब चीजें क्या है. गुड, थैंक यू. नाउ स्टूडेंट्स, जैसे अगर हम आगे की बात करें तो ये ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यूटिलिटी ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, है ना, इन सभी के पीछे की कहानी एक ही है. अकाउंट यूनिफॉर्म हो, कंपैरेबल हो, अंडरस्टैंडेबल हो, रिलायबल हो और रिलेवेंट हो. और ये तभी हो सकता है जब सिमिलर रूल्स फॉलो होंगे, व्हेन द कॉमन रूल्स विल बी फॉलोड. ठीक है, व्हेन नो कॉमन रूल्स वुड बी फॉलोड इट वुड नॉट बी पॉसिबल. ठीक है, तो अब इनको पढ़ें. इसमें अगर कोई बातें समझ में नहीं आ रही है, दैट इज गिवन ऑन द पेज नंबर 3.10. जो नहीं समझ में आ रहा है वो मुझे बताएं. लिमिटेशंस पर हम लोग बात कर लेते हैं. 2 पॉइंट हैं. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर मेन मेड, हेंस इट डज नॉट पास द वेरिफिकेशन टेस्ट ऑफिस. जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे कि बुक वैल्यू सही है या मार्केट वैल्यू सही है. So as per the international financial reporting standard, market value should be considered because that is close to reliability approach. Now, as per the Indian accounting standard, book value is right. That is because it fulfills the consistency principle. है ना, it fulfills the consistency principle. देखिए दो चीजें हैं, है ना, दोनों समझने वाली बात है. मार्केट वैल्यू क्यों फॉलो करना सही है? मार्केट वैल्यू फॉलो करना इसलिए सही है क्योंकि दिस विल मेक द अकाउंट्स मोर रिलायबल. सिंपल सी बात है भाई. जब पता है हमें कि उस मशीन की, उस प्लांट की, उस असेट्स की मार्केट वैल्यू 7 लाख रुपीस है, तो हम उसको 9 लाख पर क्यों लिखें? व्हाई शुड वी? एज पर द IFRS. नाउ एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, मार्केट वैल्यू का क्या है? वो तो चेंज होती रहती है. डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द मार्केट. अभी आप इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे 11th स्टैंडर्ड में फॉर्म ऑफ मार्केट. देयर आर द 4 फॉर्म ऑफ मार्केट, है ना. परफेक्ट कंपटीशन, कॉम्पिटिटिव मार्केट्स, मोनोपोलिस्टिक मार्केट एंड ओलिगोपोली मार्केट, है ना. सबसे लास्ट में है नाइट्रो में. एक पूरी यूनिट है, वो अकेली यूनिट है 10 मार्क्स की, 10 या 8 मार्क्स की शायद. तो मार्केट सिचुएशन है. यस प्लीज सर. लाइक गोल्ड, बट IFRS के स्टेटमेंट पे रिलाई नहीं कर सकते क्योंकि गोल्ड के जो रेट्स हैं वो कभी बढ़ जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं. तो IFRS के स्टेटमेंट्स पे हम लोग कैसे रिलाई करेंगे? हाँ, अगर उसकी मार्केट वैल्यू लिखनी होगी तो. वेरी ट्रू, है ना, वेरी ट्रू. और गोल्ड के प्राइस कम हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं. वेदांत पटेल इज इन योर क्लास.
बट नेवर Yes, sir. माइंड, He is 2 in मिनट our पहले class ज्वाइन, only. 2 मिनट पहले ज्वाइन करके वो क्या करेंगे, नेवर माइंड। अब देखिए क्या होता है, जैसे अभी आपने कहा बेटा कि गोल्ड के केस में तो विश्वास नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते गोल्ड के केस में। और सबसे बड़ी बात है कि टिल द टाइम दैट स्टॉक मार्केट और कमोडिटी मार्केट इज देयर, स्टॉक मार्केट से मेरा मतलब है स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, और कमोडिटी मार्केट का मतलब है जो मेटल में जहां पर चीजों को वायदा बाजार जो होता है, जहां पर चीजों के खरीदी बिक्री के प्रॉमिस को लेकर के उनके प्राइस फ्लक्चुएट होते हैं, ठीक है ना। So very true this, that's why it is a drawback कि accounting standards are main made, hence it does not pass the verification test always। इसलिए हम ये नहीं बोल सकते कि IFRS करेक्ट है या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करेक्ट है, दोनों अपनी अपनी जगह पर सही है। both are the main made principle and both are correct at the some place and do not pass their verification test at the some situation or in conditions. So that is the limitations of accounting standards. Second point, accounting standards are based on the business environment. Please read it. Accounting standards are based on business environment and law of country. Hence, they change often to meet the changes. Business standard, accounting standards are based on the business environment. कि आप किस तरह के business environment में हैं, किस तरह के business environment में है, किस तरह का सोशल कल्चर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है उस कंट्री में, उस देश में, ठीक है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उसके हिसाब से मॉडिफाई किए जाते हैं जस्ट टू मीट द सर्टेन चेंजेस, ठीक है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, ओके। सो दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। नाउ in box it is given, this note is a very relevant, please read it. Accounting standards are applicable on companies on which Indian accounting standard is not applicable or are not adopted voluntarily by the companies. Sir, Accounting, yes please. सर Yes. वेदांत पटेल करके एक है, उसको अंदर एंटर होना, वो पहले था लेकिन हाँ बेटा, उसमें 1 मिनट में तो क्लास खत्म होने वाली है ना। 1 मिनट में मैंने देखा उनका नोटिफिकेशन, बट 1 मिनट पहले वो क्लास ज्वाइन करना चाह रहे हैं, है ना। 9-10 हो रहे हैं क्लास। सर वो पहले क्लास में था लेकिन वो लीव हो गया था अभी 5 मिनट पहले ऐसा। अच्छा चलो ठीक, नेवर माइंड, आई कंसीडर। ओके स्टूडेंट्स, तो एक ये अगला टॉपिक है, ठीक है, इनको आप स्टडी करें, उसके जो भी डाउट्स हैं वो मुझे बताना। और एक ये जो IFRS वाला टॉपिक है हमारा, है ना, दैट इज ऑन पेज नंबर 3.12। ये हमारा लास्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स, इसको हम थोड़ा सा अच्छे से तैयार करें, अच्छे से समझें। थियोरेटिकली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो दिस वी विल स्टडी एंड आफ्टरवर्ड दिस चैप्टर इज ओवर एंड विल स्विच टू द नेक्स्ट वन, है ना। बट इसके लिए हम लोग थोड़ा सा टेस्ट वगैरह लेंगे, है ना, यूनिट टेस्ट या फिर यूनिट टेस्ट या चैप्टर टेस्ट या जो भी बोल सकते हैं आप, क्योंकि इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स। इनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, नहीं तो हमें समझ में नहीं आएगा कि हमारा सब्जेक्ट कैसे चल रहा है और क्या हो रहा है, ठीक है। सो प्लीज गो थ्रू दिस IFRS टॉपिक, व्हाट इज गिवन ऑन द पेज नंबर this 3.12. I'll just click and sign in case if the students are not having the reference, like many are not having, still it is not available in the market. Okay, so hopefully